गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस बाय राजेश कुमार उपाध्याय, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय मंदसौर। Dear friends, you already started this chapter yesterday, and in this particular part 1 we already discussed about the definition of reproduction. This is the long and this is the life process by which organisms produce their offsprings and maintain the continuity of their species. And we already discussed about the types of reproduction. Either it is asexual type and sexual type. Most of the lower organisms, unicellular organisms, reproduce by asexual reproduction, where sexual reproduction is the characteristics of higher organisms. This is asexual reproduction is the uniparental process, where sexual reproduction is a biparental process. Okay, in case of asexual reproduction, there is no gametes formation, no fusion of gametes takes place, so there is no chance of variation and origin of new species in this particular case. But in case of sexual reproduction, there is gamete formation takes place, and these gametes will be taking part in fertilization, and the offsprings reproduced by sexual reproductions showing variations. That is why the continuous variation will lead to the origin of new species. So in case of this sexual reproduction, origin of new species is possible, and we can say the origin of different species on this planet is the result of continuous sexual reproduction. Either there will be some more factors are also responsible, but the sexual reproduction is the most important factor behind the origin and evolution of different species on the land. We already discussed about, do organisms create exact copies of themselves? Yes, if organism reproduce by asexual reproduction, they create exact copy of themselves. But the answer will be no when organisms reproduce by sexual reproduction. We already discussed because of sexual reproduction leads variation, and due to variation the organisms cannot produce exact copy of themselves. There will be some genetical difference between parents and offsprings when offspring reproduce by sexual reproduction. Asexual reproduction and types also we discuss about this. Asexual reproduction types, these are the fission, budding, vegetative propagation. Fission and budding we already discussed in part 1. Today we will discuss, we start from vegetative propagation. So this is the fission in amoeba, binary fission in amoeba. We can recapitulate this particular phenomenon by this diagram only. This is the first case, parental cell. Parental cell decreases its pseudopodia and becomes rounded, and now the process of karyokinesis takes place. The nucleus starting its division, and whenever the karyokinesis end, next cytokinesis started, and after the end of cytokinesis, two daughter cells are formed. These two daughter cells will be 99.99% copy of the parental cell. Okay, so this also give one another we can say one another characteristic showing by amoeba. By this process, amoeba is immortal. Immortal means that parental cell finally divided into two daughter cells. That means this parental cell and now this daughter cells again taking part in binary fission, and they give rise to cells. Okay, so amoeba will never die. That means amoeba is immortal. Okay, multiple fission, this is the condition when organisms in unfavorable condition, it will be reproduced by multiple fission. Plasmodium is the best example.
In unfavorable condition, Plasmodium forms a cyst around its cell and maintain continuous free nuclear division, so that is why it will produce so many nucleus inside the cell. Every nucleus will be surrounded by plasma membrane, and whenever favorable condition comes, this cyst will be break and all the cells are liberated from the parental cell, and every cell behave like a plasmodium, a form of plasmodium, we can say. Okay, so this is the part we had been discussed in last video, and today we will start from, okay, this budding is also discussed in last video. So this is the hydra and reproduced by budding. A young bud is arise from the parental cell, and in the next diagram we can see the tentacles are formed on the top of this particular bud, and finally this bud will be detached from the parental cell and behave like a daughter hydra. Okay, so this is the budding, and today we will start from this vegetative propagation. In this, a new plant grow from the fragment of the parent plant. एक नया प्लांट, जो पुराने प्लांट होता है, जो ओल्ड प्लांट होता है, जो मैच्योर प्लांट होता है, उस मैच्योर प्लांट के फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उस प्लांट में बनता है. द ऑफस्प्रिंग्स आर the exact clone of the original plant, and there is no mixing of DNA. The common forms of vegetative propagations are grafting, layering, cutting, tuber, tissue culture, etc. etc. तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर हमने ग्राफ्ट कर दिया. यहाँ से प्लांट को हम इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल से यहाँ से इसको कट कर लेंगे, और दूसरा प्लांट जो है उसको हम इसके अपोजिट स्ट्रक्चर में काट लेंगे और दोनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं. दिस इज़ व्हाट ग्राफ्टिंग. ठीक है, तो ग्राफ्टिंग. इसके बाद में लेयरिंग इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ वी कैन से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये सब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग. ठीक है, कटिंग हम किसी प्लांट को जैसे हम रोज़ वगैरह की जो कलम लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसको कट कर लेते हैं. ठीक है, किसी प्लांट की एक ब्रांच को कट कर लेते हैं और उसको सॉइल के अंदर लगा देते हैं. ठीक है, पॉट के अंदर लगा देते हैं. थोड़ा समय बाद में इसकी ब्रांचिंग आ जाएगी, लीव्स आ जाएगी वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ग्राफ्टिंग. लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि कोई प्लांट होता है, जैसे दिस इज़ द पर्टिकुलर प्लांट. इस प्लांट से ये इस तरीके से ब्रांच निकल रही है, यहाँ से ब्रांच निकल रही. इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, दूसरे गमले में इस तरीके से ऐसे उसका एक पार्ट जो है वो मिट्टी के अंदर पेनेट्रेट कर देंगे हम यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही. थोड़े समय के बाद में क्या होगा, इसकी एडवांटेशियस रूट्स यहाँ पर निकल जाएगी. ठीक है, अब इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, और ये हमारा जो सोर्स प्लांट था उसको हम अलग कर लेंगे, और उसके बाद में हम द प्लांट विच इज़ फॉर्म्ड बाय लेयरिंग उसको हम अलग कर लेंगे. सो ग्राफ्टिंग में हम दो अलग अलग प्लांट्स को एक साथ ग्राफ्ट करते हैं. लेयरिंग में हम किसी पर्टिकुलर प्लांट की ब्रांच को जो है दूसरे पॉट के अंदर उसको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करवा लेते हैं. उसके बाद में कटिंग में हम क्या करते हैं, कलम लगा देते हैं. ठीक है, ट्यूबर में आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो ट्यूबर, उसमें हम पोटैटो उसमें बहुत सारी पोटैटो आइज़ होती है. अ सिंगल पोटैटो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सिलरी बड. इसको हम कट कर लेंगे और इसको सॉइल के अंदर पेनेट्रेट कर देंगे. सॉइल के अंदर इसको हम पेनेट्रेट कर देंगे. तो दिस एक्सिलरी बड विल बी गिव एरियल ब्रांचेस एज वेल एज एडवांटेशियस रूट्स. एडवांटेशियस रूट देके एक नए प्लांट को प्रोपोगेट कर देगी ये. ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक में वी विल टेक अ सिंगल सेल ऑफ प्लांट, और उस सिंगल सेल से हम सिंगल सेल कल्चर के थ्रू
एक यहाँ पर मास ऑफ सेल बनाएंगे, मास ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं कैलस। क्या बनाएंगे? कैलस। उस कैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस कैलस से बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, उस कैलस से बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। इन दिस टेक्निक वी विल यूज़ मेनी टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से सिंगल सेल लिया, सिंगल सेल को हमने अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन के लिए, मतलब उसको अनडिफ्रेंशिएटेड करवा दिया, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, अ मास ऑफ सेल। उसके बाद में उस कैलस से हमने एम्ब्रियोइड्स बनवा लिए, एंड एवरी एम्ब्रियोड विल बी गिव अ सिंगल प्लांटलेट। उससे एक प्ल्यूम्यूल और एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक प्लांट बना सकता है वो। तो यहाँ पर हम सिंगल सेल कल्चर मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं इन टिश्यू कल्चर मीडियम। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे, बहुत अलग मतलब काफ़ी सारी स्टेप्स होती है, लेकिन मैंने सिंगल आपको एक शॉर्टकट में बता दिया कि हाउ टिश्यू कल्चर टेक्निक विल बी डन इन लेबोरेटरीज। ठीक है, जनरली ये उन प्लांट्स के लिए होता है जो इंडेंजर्ड हो, बहुत कम स्पीशीज़ उनकी बची हो, तो उनको बहुत ही प्रोटेक्टिव कंडीशन में उनको हम कल्चर करवाते हैं, उनके नंबर्स बढ़ाने के लिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नंबर बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे जो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर प्रोग्राम जो है ये एक तरीके से ये इन विट्रो कंजर्वेशन है। इन विट्रो कंजर्वेशन यानी कि प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको लेके आना और उसकी जो सेल्स हैं उनको लेबोरेटरी में कंजर्व करना और उसको उससे उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ के नंबर को बढ़ाने का प्रयास करना। ठीक है, बाय टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ वी कैन से प्लांट कंजर्वेशन आल्सो। ये एक तरीका है प्लांट को कंजर्व करने का भी। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन, ये दिस इज़ द डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी, जिसमें ये एक प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया आप जानते हैं इट इज़ रिलेटेड टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम है जिसको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। तो प्लैटीहेलमिन्थिस का एक ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं। प्लेनेरिया डिवाइडेड इनटू सम फ्रेगमेंट्स एट द टाइम ऑफ वी कैन से रिप्रोडक्शन। तो वो कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, जैसे कि इसका अपर फ्रेगमेंट अलग हो गया, मिडिल एंड बॉटम। तो अपर फ्रेगमेंट ने क्या किया, मिडिल और बॉटम सिंथेसाइज कर लिया। मिडिल ने क्या किया, अपर और लोअर सिंथेसाइज कर लिया, और लोअर ने क्या कर लिया, मिडिल और अपर पार्ट को सिंथेसाइज कर लिया। और अब ये तीनों पार्ट 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप्ड हो गए। देयर विल बी 3 प्लेनेरिया इवॉल्व्ड बाय द रीजनरेशन ऑफ दिस पैरेंटल प्लेनेरिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दिस सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसकी जो सेल है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है और उनमें लगातार डिवीज़न हो सकता है। सेल परमानेंट टिश्यू नहीं है, एक तरीके से आप कहें तो टेम्परेरी टाइप का टिश्यू है, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है। एंड दिस पर्टिकुलर टिश्यू या ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी कैन गिव राइज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन। और थोड़ा इसमें डिस्कस करें। इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लानरिया वी हैड ऑब्जर्व दैट इफ दे are cut in several pieces, each part grows into a new organism. ठीक है, this is known as regeneration. This specialized cell proliferate and produce a large number of cell. This proliferated cell undergoes change and form different cells and tissues. The sequential process of these changes is known as development. ठीक है, तो because of cells of the body of planaria are not completely differentiated, that is why they can maintain continuous division and so that they can give rise a complete organism. ठीक है, so this is what regeneration. Spore formation, this is also a type of we can say vegetative propagation or we can say asexual reproduction. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहना चाहिए वैसे। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन द ऑर्गेनिजम्स
form knob-like structure called as sporangium. अब क्या देखिए, अब यहाँ पर इस ये जो फंगी है, इस फंगी में ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो लोअर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइसीलियम, है ना। माइसीलियम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो इनकी मेन बॉडी होती है फंगी, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो दिस माइसीलियम ग्रोज ऑन डेड रोटन थिंग्स। ये सैप्रोफिटिक फंगी आप जानते हैं, डेड रोटन थिंग्स में ग्रो करता है। और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इट गिव्स अ एरियल हाइफी। ये एरियल हाइफी बनाएगा, एरियल ब्रांचेस बनाएगा। और इन एरियल हाइफी के टर्मिनल स्ट्रक्चर, टर्मिनल इनके जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। वेयर जो यहाँ की जो सेल्स होगी उनमें लगातार माइटोटिक डिवीज़न होगा, ठीक है। और उस माइटोटिक डिवीज़न से, माइटोसिस से बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और फाइनली जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगी, सारे स्पोर्स बन जाएंगे, एट दैट टाइम ये स्पोरेंजिया ब्रेक हो जाएगी और स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दे विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर डेड रोटन थिंग्स अगेन, वापस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ आके फिर जर्मिनेट करके फिर वापस से माइसीलियम बनाएंगे। और वो माइसीलियम वापस से फिर एरियल हाइफी बनाएगा, फिर उसके ऊपर टर्मिनल स्पोरेंजिया बनेंगे, उनमें स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स निकलेंगे और फिर अगेन वो स्पोर्स जर्मिनेट होके माइसीलियम बनाएंगे। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल पैटर्न। आप वी कैन से दिस राइजोपस फंगी, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेड माउल्ड। तो during spore formation the sporangiums form knob-like structure. The organisms form knob-like structure called sporangium. Sporangium का formation of this happens during the unfavorable conditions in an adequate supply of moisture and nutrient. When the conditions are favorable they begins to grow, ठीक है। The sporangia contains spores that developed into a new individual. The spores are covered by the thick walls that protects the spores until they come in contact with moisture and begin to grow, ठीक है। तो यहाँ से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर्स लिबरेट हो गए, जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इन सब फंगी, और उनमें से एक है हमारा ब्रेड माउल्ड राइजोपस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम वैसे जब हमने टाइप डिस्कस किए थे तो डिस्कस कर लिया था इसको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसमें मिलेगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली मिलेगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था बायपेरेंटल प्रोसेस है। इन दिस the male and the female gametes fuse together and give rise to a new individual, ठीक है। तो यहाँ पर बायपेरेंटल प्रोसेस है, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स विल बी देयर, दे प्रोड्यूस देयर गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। एंड दिस स्पर्म एंड ओवम टेकिंग पार्ट इन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन टू फॉर्म zygote. This zygote give rise embryo and this embryo will give rise offspring, ठीक है। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखते हैं। सो बिफोर डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर फ्लावर part of that plant flower is the reproductive part of the plant, ठीक है। सो उसके बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा सबसे पहले कि फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो फ्लावर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, या दो तरीके के पार्ट होते हैं उसमें, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, वेजिटेटिव पार्ट पहला और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में नंबर 1 पेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव पार्ट होते क्या है? द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली वेजिटेटिव पार्ट आर द पार्ट्स
दोज नॉट टेकिंग पार्ट इन फर्टिलाइजेशन और वी कैन से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स। और उसमें आएंगे सबसे पहले पेटल्स ले लीजिए, वैसा सेपल्स होना चाहिए सबसे पहले, लेकिन आप पेटल्स को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पेटल्स, ठीक है। दिस इज़ द ब्राइट कलर्ड पार्ट दैट अट्रैक्ट बीज या डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। Color of petals varies from plants to plants. Some are bright white, some pale colored. Thus petals help to differentiate one flower from the another. तो पेटल जो होते हैं वो सिंपल सी बात यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ये ब्राइट कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे हेल्पफुल इन अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीज, इन सबको ये अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दे आर ब्राइट इन कलर्ड। ऑल्सो अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर एक नेक्टिफेरस एरिया होता है, नेक्टर ग्लैंड होती है दैट सीक्रेट्स नेक्टर एंड उस नेक्टर के कारण फ्रेग्रेंस होती है और फ्रेग्रेंस और इस कलरफुल पेटल के थ्रू ये बीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो है ये अट्रैक्ट होकर इस फ्लावर की तरफ आते हैं और जब ये फ्लावर के ऊपर आते हैं यहाँ पर इससे अट्रैक्ट होकर नेक्टर को लेने के लिए, तो एट दैट टाइम ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टेमन, यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बीज के अपेंडेजेस, उनके विंग्स के ऊपर, उनके बर्ड्स के फेदर्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं एंड वेन एवर दीज एजेंसीज, ये जो बीज, इंसेक्ट, बर्ड्स है, ये सेम स्पेशीज़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर जब जाते हैं तो ये वहाँ इन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको ये ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। चलिए आगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने पढ़ा पेटल जो कि कलरफुल पार्ट होता है और अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर का हो सकता है, अट्रैक्टिव होता है, नेक्टर ग्लैंड इसके बेस में लगी होती है जिससे ये नेक्टर सिक्रेट करता है और उस नेक्टर और उस कलरफुल स्ट्रक्चर के कारण बीज और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर की तरफ आते हैं और यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स को लेकर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर इसको ट्रांसमिट कर देते हैं, पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेपल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेपल जो कि बेसल पार्ट होता है, इससे फर्स्ट वर्ल इज द सेपल इज द फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। पेटल इज द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इसके बाद में जो पिस्टिल होगा, पिस्टिल इज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर और फोर्थ जो होगा जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, दिस इज द फोर्थ और सेंट्रल, पिस्टिल इज द फोर्थ वर्ल एंड द थर्ड वर्ल इज व्हाट, स्टेमन इज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक। तो हम सेपल के बारे में बात कर रहे हैं। सेपल जो होता है बेसल एंड ग्रीन पार्ट, सेपल इज द ग्रीन कलर्ड पार्ट बीनीथ द पेटल टू प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड। जो बर्ड राइजिंग होता है यानी कि जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, एट दैट टाइम सेपल विल बी यूज बाय फ्लावर फॉर इट्स प्रोटेक्शन, है ना। सम फ्लावर्स हैव फ्यूज्ड पेटल, सेपल विद अ फ्यू हैव सेपरेटेड पेटल्स। पेटल हमें इस बारे में कोई ख़ास बात नहीं करना है, आप तो सिंपल सा इस पर याद रखिएगा कि इट इज़ द फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, सेपल इज़ द फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, जनरली इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेपल लिख लेंगे, उसके बाद में पेटल के बारे में लिख लेंगे। तो ये दोनों वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए आपके, क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो है थर्ड वर्ल मैंने आपको कहा था, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। दिस इज़ द मेल स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द एंड्रोशियम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये एक इंडिविजुअल को हम स्टेमन बोलेंगे, लेकिन पूरा एक साथ जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। द कंप्लीट वर्ल, थर्ड कंप्लीट वर्ल जो है उसको हम एंड्रोशियम कहेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने सेपल, ये यहाँ पर सेपल का कंप्लीट वर्ल जो है वो कैलिक्स, क्या होगा, कैलिक्स, ठीक है। पेटल का कंप्लीट वर्ल कोरोला। स्टेमन का कंप्लीट वर्ल जो है उसको बोलेंगे एंड्रोशियम और ये जो पिस्टिल का कंप्लीट वर्ल इसको हम बोलेंगे गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम,
ठीक, ये याद रखिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम वापस आते हैं स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम, इसको एंड्रोशियम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स नेमली एंथर एंड फिलामेंट। जब इस एंथर को हम देखेंगे, इस एंथर को देखेंगे तो ये 2 पार्ट होते हैं इसके। दिस इज द फिलामेंट, तो स्टेमन को जब हम देखेंगे उसको 2 पार्ट होते हैं। दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर सेक, एंथर सेक। दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ द एवरी स्टेमन। हर स्टेमन के ये 2 पार्ट होते हैं। द एंथर इज येलोइश sac like structure involved in production and storage of the pollen grains। तो ये जो हमारा एंथर सैक है, यहाँ पर क्या होगा, एंड पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और उनका स्टोरेज भी करके रखेगा टिल द पोलिनेशन तक, या टिल द ब्रेकिंग ऑफ दिस, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक उसमें पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखेगा। द फिलामेंट इज सिलेंडर थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट विच फंक्शन बाय सपोर्टिंग द एंथर। तो ये जो फिलामेंट होता है, ये यहाँ पर, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेस यहाँ लगा हुआ है इसका, ये तो ये इस एंथर को सपोर्ट करके रखता है अपने ऊपर, इसको अटैच करके रखता है। फिलामेंट का यही फंक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पिस्टिल, द सेंट्रल मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का सेंट्रल मोस्ट वॉल, इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। फ्लावर विच कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जैसे कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो दिस इज द स्टिग्मा। ये जो ओपनिंग स्ट्रक्चर है, ओपनिंग स्ट्रक्चर इज द स्टिग्मा, ओनली माउथ दिस, एंड दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल, दिस इज द स्टाइल, एंड दिस बेसल पार्ट, बेसल swollen part is called as what, ovary. This is ovary and this tube is the style and the opening mouth is the stigma. ये पार्ट होंगे और दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिस्टिल, और इसके पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, गाइनोशियम बोल सकते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। सो दिस इज द वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ a typical flower of flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट का जो होते हैं उनमें एक जनरली, मैंने टिपिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बायसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, तो मोस्टली हम बायसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर, कोई भी बायसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे। आपको सबसे पहले इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझना है। द फर्स्ट वर्ल इज कॉल्ड एज व्हाट, सेपल, एंड द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स, ठीक है। और कैलिक्स का क्या फंक्शन है कि दे प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड कंडीशन, दे आर ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं करोला। दिस इज द सेकंड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ब्राइट इन कलर, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। तो ब्राइट इन कलर एंड द कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द कलर ऑफ पेटल के कलर से ही फ्लावर का कलर होता है। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला, उसको हम कोरोला कहेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं, दे विल नॉट टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन बट दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ, क्योंकि पहले वाले ने तो बट कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है पेटल, ये ब्राइट कलर का होता है, इंसेक्ट को इनवाइट करता है अपने ऊपर आने के लिए ताकि यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स को डेहिस कर सके, उसको ट्रांसफ़र कर सके, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुँचा सके, तो ये हेल्प कर रहा है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। इसके बाद में जो बचे हुए 2 वर्ल है जिसमें हमने स्टेमन, द इंडिविजुअल इज स्टेमन विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट, and the group of stamen is called as androecium and it is considered as a male reproductive organ, ठीक है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमिटोफाइट का के रूप में काम करते हैं। दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, वहाँ जाके वो गैमिट्स रिलीज़ करते हैं अपने, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद में हमें पिस्टिल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि पिस्टिल इज़ द सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज़ कंसिडर्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होती है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करती है एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। स्टाइल जो होती है वो पोलन ट्यूब को इलांगेट करने का काम करती है आफ्टर द पोलिनेशन, ठीक है। और ओवरी
जो होती है वहाँ पर ओव्यूल रहता है और उस ओव्यूल के अंदर ओवम रहता है। तो जो पोलन ट्यूब इलांगेट हो रही है वो मेल गेमिट्स को लेकर ओव्यूल तक जाएगी, वहाँ पर ओवम के साथ में मेल गेमिट्स को फ्यूज़ करवाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फ्लावर का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ताकि कल जब हम बात करें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फार्मेशन, उसके बाद में फ्रूट का फार्मेशन, डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस लिखे होंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।